Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our class 10 physics series. In this video, we are going to go through the long questions and numericals from unit number 10, which is heat, capacity and modes of heat transfer of class 10. So grab your notebooks and let's break everything down in a simple and clear way. Long question number 1 is explain the concept of specific heat capacity in matter. Discuss various applications of water based on its high specific heat capacity. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हीट कैपेसिटी को डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू मैटर और फिर हमने वाटर की हीट कैपेसिटी को अप्लाई करना है डिफरेंट वेरियस एप्लीकेशन इन आवर डेली लाइफ. Specific heat capacity is defined as the amount of heat energy required to raise or fall the temperature of 1 kg of substance by 1 Kelvin or 1 degree Celsius. Basically, जब भी किसी भी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करता है या 1 डिग्री डिक्रीज करता है जिसमें उसका जो है और उस मैटर की जो मास है दैट मस्ट बी 1 kg और 1 डिग्री अबव और 1 डिग्री लो टेम्परेचर जो हीट अमाउंट ऑफ हीट चेंज होती है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. It is represented by the symbol C and its system international unit is joule per kg per degree Celsius or Kelvin. A substance with a high specific heat capacity absorbs more heat to raise its temperature by 1 Kelvin, and for example, water. And some substances require low heat to do so, for example, copper, iron, aluminium, and diamond, etc. Basically, water has high boiling point, so it needs more heat. It needs to absorb more heat to raise its temperature, while a few metals which are given here, these have low boiling point, low specific heat capacity. So they change temperature, they gain heat fastly, and they also lose heat fastly. Okay, water has a very high specific heat capacity, which is 4190, or which is almost equal to 4200 joule per gram per degree Celsius compared to most other substances. This means it can absorb or release large amount of heat with little change in its temperature. This property makes water extremely useful in various natural and industrial processes. ड्यू टू मतलब ये ज़्यादा जल्दी हीटअप भी नहीं होता और ज़्यादा जल्दी कूल डाउन भी नहीं होता ना, मतलब आसानी से एनर्जी हीटअप होता है और ना आसानी से ठंडा होता है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस आसानी से नहीं आता. Applications of water due to high specific heat capacity. First one is climate moderation. Oceans and seas absorb heat during the summer and release it slowly during winter, preventing extreme heat temperature changes between summer and winter in coastal areas. Which basically during summer, जब surrounding temperature high हो जाता है तो water जो एब्जॉर्ब करता है अबव सरफेस ऑफ सी लेवल और ओशन जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही होती है तो वो जल्दी वार्म अप नहीं होता. इस वजह से भी वो सराउंडिंग का जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनको टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और जब विंटर में वो और लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो उसको स्टोर करके रखता है, स्लोली रिलीज करता है. तो और वो जो हीट सारी उसने समर में एब्जॉर्ब किया वो विंटर आते आते वो आराम आराम से स्लोली रिलीज करता है. दिस इज हाउ सराउंडिंग टेम्परेचर को मतलब विंटर्स में जब सराउंडिंग टेम्परेचर बहुत लो होता है ये जो हीट रिलीज करता है उसको कोस्टल एरियाज को अगेन बैलेंस कर देते हैं. Car radiator. Water is used in automobile cooling systems to absorb engine heat and prevent overheating. इसमें भी जो उसका रेडिएटर होता है ऑटोमोबाइल्स का, उसमें वाटर फिल किया जाता है. वाटर क्या करता है, उसका जो रेडिएटर है जब वो ज़्यादा ओवर हीट करने लगता है तो ये उसके टेम्परेचर को गेन कर लेता है वाटर और उसको कूल रखता है. कुकिंग प्रोसेस. वाटर इज गुड फॉर कुकिंग बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पेसिफिक हीट. इट हीट अप स्लोली एंड डिस्ट्रीब्यूट हीट इवनली. एक तो ये स्लोली हीट अप होता है और हीट को कुकिंग जो
कंपोनेंट्स होते हैं उसमें स्लो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है। इट इंश्योर्स फूड कुकिंग विदाउट बर्निंग। इससे क्या होता है कि ये नहीं है जो साइड नीचे से यूटेंसिल्स के साथ कुकिंग पॉट के साथ लगे वही बर्न हो जाए और दूसरी साइड कच्ची रह जाए, ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन करता है। थर्मल रेगुलेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। The human body, composed mostly of water, resists rapid temperature changes, helping maintain internal stability. हमारे बॉडी का 60% जो कंपोनेंट है वो वाटर है, तो यही वाटर बाहर के जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है अगर वो बहुत एक्सट्रीमली 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच भी जाए तब भी उसको हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखता है, मेंटेन करता है। अगर बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर विंटर्स में -1 भी माइनस में भी चला जाए तब भी हमारे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस पर रखता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। वाटर इज यूज्ड टू कूल डाउन मशीनरी एंड इक्विपमेंट ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जैसे रेडिएटर ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में था। What is conduction and how it is explained by kinetic theory of solids? What makes metal better conductors than other solid substances? Conduction is process of heat transfer through a solid material without any movement of material itself. मतलब solids में जो heat transfer होती है material को move किए बगैर, that is known as its conduction. Heat is transferred from the hotter part of substance to cooler part of substance by vibration and interaction of free particles of atoms. इसमें बेसिकली जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से एटम्स आपस में फिक्स पोजीशंस पर होते हैं, वो जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना सॉलिड पार्टिकल्स का, तो वो एटम्स जो है ना वो वाइब्रेशन करते हैं। ड्यूरिंग वाइब्रेशन मतलब उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो फास्ट वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, उनकी वो मूव करना शुरू हो जाता है। उन फ्री पार्टिकल्स का आपस में इंट्रैक्शन और मूवमेंट से क्या होता है कि हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम हाई रीजन टू लोअर रीजन। Kinetic theory of solids explain that particles in a solid are tightly packed and constantly vibrate in a place. When one part of solid is heated, the particles vibrate faster and transfer energy to adjacent particles through collision. वो higher heated region के जो electrons होंगे वो lower heated region के electrons के साथ जब collide करेंगे, टकराएंगे, तो वो heat transfer कर देंगे। This process continues, resulting in the flow of heat from hot to cold regions. अब हम बात करेंगे कि why metals are better conductors than other solids. Metals are excellent conductors because they contain free electrons that move freely throughout the material. इनमें free electrons होते हैं जो freely throughout the material move करते हैं. This is how ये rapid हीट ट्रांसफर करेंगे। जबकि नॉन मेटल सॉलिड जो होते हैं लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते एंड डिपेंड ओनली ऑन स्लोअर लेटेस्ट वाइब्रेशंस फॉर कंडक्शन। जो उनके एटम्स की अपनी स्लो वाइब्रेशन चल रही होती है, जस्ट उसी के थ्रू हीट ट्रांसफर करते हैं। एग्जांपल ऑफ गुड कंडक्टर्स आर कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड एग्जांपल ऑफ पुअर कंडक्टर्स वुड, प्लास्टिक एंड रबर। Okay, question number 3 is analyze how heat is transferred through convection. हीट कन्वेक्शन की प्रोसेस से कैसे ट्रांसफर होती है? प्रोवाइड एटलीस्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ हाउ कन्वेक्शन इज यूज्ड इन डेली लाइफ। कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर in fluids, liquid states, liquids and gases through the movement of particles. When a fluid is heated, its particles gain energy, move faster and spread apart, reducing the fluid density. The warmer and less fluid rises while the cooler, denser fluid sinks. This continuous cycle forms convection currents that distribute heat. इनमें क्या होता है कि लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जब एक वाटर को वार्म किया जाता है, वो उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं और वो मूव फास्टली मूव करना शुरू करते हैं और एक दूसरे से उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे से बहुत डिस्टेंस पे मूवमेंट शुरू कर देते हैं और उससे क्या होता है कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है लेस डेंस हो जाता है, डेंसिटी रिड्यूस कर देता है, वो हल्का हो जाता है। तो वो हल्की चीज ऊपर की तरफ वाटर वेपर्स की तरह, जैसे वाटर वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर से जो कोल्ड पार्टिकल्स होते हैं
वो कंपैरेटिव टू दीज वार्म पार्टिकल्स भारी हो जाते हैं। तो ये वार्म ऊपर जाके उनकी जगह ले लेंगे और वो ठंडे नीचे आएंगे, ठंडे नीचे से वापस वार्म होकर ऊपर, दिस इज हाउ एक साइकिल चलता रहता है। एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन इन डेली लाइफ, बॉइलिंग वाटर इन पॉट, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम बिलो, द हॉट वाटर एट द bottom rises while cooler water from the top sinks. This movement sets up a convection current that evenly heats the water. इसी तरह से होता है कि जब हम आग नीचे से जलाते हैं तो जो वाटर नीचे वाली सरफेस पे होता है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ आता है और इस तरह एक करंट, एक साइकिल डेवलप होता है जिसकी वजह से पूरा पॉट का वाटर जो है ना वो वार्म हो जाता है, इक्वली वार्म हो जाता है। रूम हीटिंग विद अ हीटर, heater warms the air near the floor. This warm air rises and cooler air moves down to take its place, circulating warm air throughout the room via convection currents. सेम उसी प्रोसीजर से जो हमारे अब ये एयर की बात हो रही, गैसेस की बात हो रही है कि रूम टेम्परेचर पे हीटर नीचे रखा होता है, फिर भी पूरा रूम या ऊपर भी हो तो पूरा रूम क्या होता है इक्वली वार्म हो जाता है। कैसे? जब एयर सराउंडिंग एयर विद हीटर वो गर्म होती है तो ऊपर की तरफ से उठती है, ऊपर से ठंडी हवा नीचे आती है, वो फिर वार्म होकर उसी तरह से कन्वेक्शन करंट बन जाता है। सी ब्रीज, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड हीट्स अप faster than water. The warm air over the land rises and is replaced by cooler air from over the sea. This moving air is called sea breeze, a natural example of convection in the atmosphere. Sea breeze is मतलब समुद्र से आने वाली हवा। जब पानी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, वाटर है स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो सी लेवल सी का सरफेस का पानी है उसकी वो ज़्यादा देर से गर्म होगा कंपेरेटिव टू दैट आसपास की जो लैंड एरिया है वहाँ लैंड जल्दी गर्म हो जाएगी, तो उससे जो हवा ऊपर से उठेगी वो दैट विल बी वार्म, वो ऊपर जाके रिप्लेस करेगी कूलर एयर फ्रॉम द सी को, और इस तरह से एक साइकिल चलेगा और इस तरह से कूल ब्रीज सी ब्रीज जो टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी, सराउंडिंग टेम्परेचर को बैलेंस रखेगी। चिमनीज एंड एग्जॉस्ट, hot air and gases from the stoves or factories rise due to convection and expelled through. इसी तरह से जो वार्म एयर उठेंगी वो बाहर से चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। Question number 4 is analyze the process of heat transfer through radiation, explaining why it is the fastest method of heat transfer. What factors influence the rate of heat transfer by radiation? एक थर्ड प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसको कहते हैं रेडिएशन। उस पहले हमने इसको एक्सप्लेन करना है, देन हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाई दिस इज नोन एज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, और कौन से फैक्टर्स हैं जो इस हीट ट्रांसफर के मेथड को इन्फ्लुएंस करते हैं। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्राइमरली इंफ्रारेड वेव्स। Unlike conduction and convection, radiation does not need any medium or to transfer heat. It can occur in a vacuum. This is why radiation is the fastest method of heat transfer. Energy travels at the speed of light in the straight lines. Basically, जैसे पहला हमने पढ़ा था उसमें कंडक्शन वो सॉलिड, उसको सॉलिड मीडियम चाहिए था, कन्वेक्शन को लिक्विड या एयर मीडियम चाहिए, बट रेडिएशन के प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होती है इन वैक्यूम। इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि ज़रूर कुछ उनमें मूवमेंट हो पार्टिकल्स की, मीडियम हो, ये वैक्यूम में होता है। और इस कैसे होता है? इंफ्रारेड वेव्स से, या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। और ये फास्टेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसको कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इज द मोस्ट फास्टेस्ट स्पीड, तो उसके रोल पर ये मूव करता है। द सन्स एनर्जी रीच द अर्थ थ्रू रेडिएशन डिस्पाइट द वास्ट वैक्यूम ऑफ द स्पेस। सन एनर्जी जैसे अर्थ पर पहुंचती, इतनी स्पीड से पहुंचती है, वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, उसके लिए कोई मीडियम नहीं रिक्वायर्ड। सन के और अर्थ के बीच में वैक्यूम है, वहां से स्पेस के वैक्यूम से आती है। The rate of heat transfer by radiation is influenced by several factors. Surface color. Dark and dull surfaces absorb and emit more radiation compared to shiny or light colored surfaces. Dark या dull surfaces जो होती हैं वो ज़्यादा heat को absorb करती हैं और ज़्यादा heat emit भी करती हैं, और जो shiny होते हैं और जो light colored होते हैं वो reflect करते हैं। Surface temperature. Hotter objects emit more radiant energy than cooler ones. Of course. Surface area. A large surface area radiates more heat. Surface area जितना exposure जितना ज़्यादा किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा उतने ज़्यादा वो हीट रेडिएट करेगा, उतने ज़्यादा वो हीट ट्रांसफर करेगा।
Nature of surface. Rough surface radiate more heat than smooth ones. Smooth ones, जो smooth surfaces होती हैं वो less heat transfer करती हैं. Rough surfaces ज़्यादा heat transfer करती हैं. Question number 5 is analyze the role of greenhouse gases in global warming. How does global warming contribute to increased severity of hurricanes, heat waves, flooding and droughts? ग्रीन हाउस गैसेस पहले उनका तो रोल क्या है ग्लोबल वार्मिंग में, कैसे वो अफेक्ट intensity of global warming is going to increase severity of hurricanes, heat waves, flooding and droughts. Okay, greenhouse gases like carbon dioxide and methane and water vapor trap heat in Earth's atmosphere by absorbing infrared radiation reflected by Earth's surface. उसमें क्या होता है कि इंफ्रारेड जो अर्थ की तरफ आती हैं उनको ये ट्रैप कर लेते हैं, उनको वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाने देती. तो दिस इज हाउ दे विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ हैबिटेबल टेम्परेचर, बट एक्सेसिव एमिशन from human activities like burning of fossil fuels, coal, wood, oil, and natural gas, large number of vehicles on roads generating smoke, and many industrial and agricultural activities and deforestation, etc., have increased the concentration of greenhouse gases in the atmosphere. Basically, एक natural phenomena था वैसे तो, जिसके थ्रू हैबिटेबल अर्थ के टेम्परेचर को, मतलब अर्थ सन से एनर्जी लेके अर्थ के टेम्परेचर को एक वेल मेंटेन टेम्परेचर रखने की कोशिश की, मतलब किया जाता है. बट हर चीज़ का एक बैलेंस होता है. तो इन ग्रीन हाउस गैसेस का भी एक नेचुरल बैलेंस था, जिसको अब ह्यूमन एक्टिविटीज ने डिस्टर्ब कर दिया. जब वो ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज हुई तो टेम्परेचर भी ज़्यादा ट्रैप होना शुरू हो गया, और दैट इज ग्लोबल वार्मिंग. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन क्लाइमेट इवेंट्स. हरिकेन्स, कैसे हरिकेन्स को अफेक्ट कर रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग हीट्स ऑफ द ओशंस गिविंग हरिकेन्स मोर एनर्जी. जो समुद्री तूफान होते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं. दिस मेक्स देम स्ट्रॉन्गर विद फास्टर विंड्स. हवाएं बहुत तेज़ होती हैं, और हैवी रेन्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें भी ज़्यादा होने लगी हैं. वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, सो हरिकेन्स कैन ड्रॉप इवन मोर रेन. वहाँ से जो बेसिकली जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हाई हो रहा है, तो वाटर सी का जो ओशंस का वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या मतलब वार्म हो रहा है. वहाँ से फिर वो ज़्यादा हवा में ज़्यादा पानी उठ रहा है, और वो ज़्यादा ठंडा हो, ऊपर से ठंडा होके ज़्यादा बारिशें बरसा रहा है, जिसकी वजह से तूफान आते हैं. Heat waves, increased average global temperature lead to more intense and prolonged heat waves, जैसे we are facing in winters. This increased temperature of the earth is causing fast melting of glaciers, which is increasing the sea levels. Rising sea levels is a threat to coastal area life, as it is increasing flooding and erosion of land. Basically floods increase, और glaciers मतलब natural resources of water हैं कि अलग अलग मैकेनिज्म है कि नॉर्दर्न रीजन्स में वाटर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. वो टाइम टू टाइम एक बैलेंस टेम्परेचर के साथ ईयरली वाटर सोर्स के तौर पे काम करते हैं. लेकिन जैसे कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ग्लेशियर्स अब नॉर्मल तरीके से जल्दी जल्दी पिघल रहे हैं, और उससे क्या होता है कि ओशंस में वाटर लेवल इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है कोस्टल एरियाज में. ड्रॉट्स. Due to greater evaporation rate, water in the soil and plant is decreasing. It is causing the land to get drier and making it harder for plants to acquire enough water to grow healthy. इवेपोरेशन, टेम्परेचर ज़्यादा, इवेपोरेशन रेट ज़्यादा हो रहा है वाटर का सॉयल और प्लांट से, जिसकी वजह से प्लांट को इनफ अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पाता टू मेंटेन इट्स हेल्दी लाइफ or to produce photosynthesis. In summary, global warming destabilizes climate systems, making extreme weather more frequent and damaging. Question number 6 is, why does Earth's core have extremely high temperature even after 4 billion years? अर्थ का जो कोर है, it is assumed by scientists that Earth is 4 billion years old. तो आज तक वो इतना extremely high temperature क्यों है अर्थ के कोर का? The earth core remain extremely hot up to 6000 degrees Celsius due to several continuous processes, क्योंकि वहाँ पे continuous कुछ processes हैं जो continuously चल रहे हैं, जो उसको warm रखते हैं. Residual heat from formation. During the formation of the earth, large number of massive objects like planetesimal objects, asteroids, and other mass objects collide with it.
वो कोलाइड टकराते हैं, रगड़ खाते हैं. The kinetic energy from these collisions were converted into heat. Large amount of this heat energy has been retained in the Earth's core. जब अर्थ बन रही थी, एस्ट्रॉइड्स वगैरह डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स लार्ज ऑब्जेक्ट्स थे इसके सेंटर का, वहां से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो अंदर इसके कोर्स में रिटेन रहेगी, स्टोर रहेगी. रेडियो एक्टिव डिके. There are certain radioactive elements present in the Earth's core like uranium, thorium and potassium. ये radioactive materials हैं, elements हैं. During the decay of these radioactive elements, large amount of energy is released in the form of heat. This process is continuously contributing to the temperature of the core. Due to decay process, amount of these radioactive elements is also decreasing. That's why rate of heat generation from radioactivity has decreased slightly. ये रेडियोएक्टिव मटेरियल अंदर अंदर अर्थ के कोर में डिस्ट्रॉय होते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ग्रेविटेशनल कंप्रेशन. During the formation of Earth, its materials were compressed under the force of gravity. This increased the pressure and hence temperature in the core. In this way, gravitational compression becomes a constant source of heat to the core. कंप्रेस रखते हैं, मतलब नीचे की तरफ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी मटेरियल्स जो होते हैं अर्थ के जो उसकी फॉर्मेशन में है, उसके कोर में है, वो कंप्रेस्ड होते हैं, दबे होते हैं. तो इस वजह से प्रेशर इंक्रीज करता है. प्रेशर अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज करता है. Crust as insulator. The Earth's outer layer acts as thick layer of insulation. This slows down the rate at which heat escapes from the temperature of the core for a longer period into space. So crust helps maintain the high temperature of the core for a longer period. जो आउटर सरफेस ऑफ अर्थ है बेसिकली ये ग्रेट इंसुलेटर है. ये बाहर अंदर के जो कोर के नीचे वाली कोर्स का टेम्परेचर उसको एटमॉस्फेयर में स्केप ही नहीं होने देती. Mechanism that generate heat are gradually slowing down, allowing heat to escape from the earth. However, this process is so slow that core has managed to maintain its temperature for the past 4 billion years. Although इन mechanisms ये mechanism slow होते जा रहे हैं, heat अब थोड़ी escape होती है, but ये process इतना slow है कि 4 billion years हो गए अभी भी core में temperature 6000 degree Celsius maintained है. Question number 7 is how are tectonic plates formed and what factors cause them to move? Explain these causes in detail and discuss the effects of plate movements. Basically, Earth is based on tectonic plates, जिनको tectonic plates कहा जाता है. Tectonic plates are massive slabs of Earth lithosphere, जिसमें crust और upper mantle आते हैं. That formed as the molten earth cooled and solidified into separate pieces. Basically, slabs हैं, टुकड़े हैं बहुत बड़े अर्थ की सरफेस लिथोस्फीयर के. बेसिकली वो जो लावा था वो ठंडा होके वहां पे बड़े बड़े सेपरेट पीसेस में जमा हो गया. ठीक है. और वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बने हुई हैं, लेकिन ये सेपरेट पीसेस हैं. Causes of movement. Mantle convection currents. Heat from the earth's interior causes convection currents in the mantle, pushing plates slowly across the surface. वो क्या करता है, अंदर से जो हीट निकल रही है वो उनको एक कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस कर रही है, उसके थ्रू वो जो पीसेस हैं, पुश प्लेट्स हैं, उनको सरफेस की तरफ पुश करती रहती है, हिलाती रहती है. रिज पुश. Mid ocean ridges, magma rises, forming new crust that pushes older plates outward. न्यू जो अंदर आतिशफशा पहाड़ों में जो लावा है वो बाहर निकलता है, वो नई मतलब पीसेस बनाते हैं जो पहले वालों को पुश करते हैं बाहर की तरफ और वहां पे उसकी जगह लेते हैं. स्लैब पुल. Subduction zones. Denser plates sink into the mantle, pulling the rest of the plates along. कहीं कहीं क्या करते हैं, पहले से मौजूद जो प्लेट्स होते हैं, भारी प्लेट्स होते हैं, वो उसके मेंटल सरफेस में लेयर में अंदर की तरफ सिंक होती हैं, डूबती हैं और बाकियों को भी अपने साथ मूव करवाती हैं. इफेक्ट्स क्या होते हैं अब इन प्लेट मूवमेंट्स की? ये नेचुरल फिनोमेना है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट. अब इसकी वजह से होता क्या है? फर्स्ट इज अर्थक्वेक. occur when plates grind against each other, transform boundaries. Volcanoes form convergent boundaries where subduction allows magma to rise. Mountain formation happens when plates collide and compress upwards. Himalayas जैसे mountains अंदर से वो जो plates थी, tectonic plates थी, वो बाहर rise up हुई हैं. Ocean trench forming. Subduction zones, one plate is forced under another, forming deep ocean trenches. ये oceans भी इसी तरह से बने, जैसे mountain ऊपर की तरफ वो plates बाहर आई अगर तो ऊपर above surface आ गई, अगर वो अंदर की तरफ ज्यादा नीचे चली जाए दब जाए तो वहां पे ocean बन गए.
Tectonic plates movement shapes the earth's surface and drives most geographical activity. इन्हीं की मूवमेंट है कि जहाँ वो ज़मीन से निकले वहाँ पे माउंटेन्स हैं, जहाँ वो ज़मीन बैलेंस है वहाँ पे प्लेन्स हैं, जहाँ पे ये अंदर की तरफ दाबती हैं वहाँ पे सी है. So this is how it is maintained geographical activity of the earth. Now let's start numerical response questions. Numerical number 1 is convert specific heat of water, which is 4180 joule kilogram per Kelvin, into units of joule gram per degree Celsius. Basically हमने सिर्फ इसका यूनिट कन्वर्ट करना है. ओके, टू फाइंड इन इसमें हमने जस्ट यूनिट चेंज करना है. सोल्यूशन हमने किलोग्राम को अगर हमने ग्राम में, हमें ग्राम चाहिए, ग्राम में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 kg as 1 kg is equal to 1000 gram, so we will divide 4180 by 1000. Okay, तो आंसर इज 4.18 जोल ग्राम पर ग्राम पर केल्विन. अब हमें डिग्री सेल्सियस भी चाहिए. एज वी नो 1 केल्विन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस. तो जस्ट हमने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के थ्रू केल्विन को रिप्लेस कर दिया डिग्री सेल्सियस से. तो आंसर इज 4.18 जोल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. Next question is calculate the amount of heat given to 25 kg of water to increase its temperature by 50 degrees Celsius. Mass of water had to 25 kg and change in temperature क्या है 50 degrees Celsius. कितनी amount of heat given है उसको हम it will be known as it will be mentioned by Q और हमने ये find करनी है. The formula is Q is equal to mass specific heat capacity of water and change in temperature. जब हम वैल्यूज पुट करेंगे मास की, हमें पता है 25 kg है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 डिग्री सेल्सियस जोल किलोग्राम पर केल्विन और टेम्परेचर क्या 50 डिग्री सेल्सियस. तो हम जब इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 52,50,000 जोल. ये यूनिट्स आपस में काट हो गए, ठीक है. एंड जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो 5.25 into 10 power 6 joule. As we know 10 power 6 is equal to mega, so that is answer is 5.25 mega joule. Question number 3 is a half kilogram block of an unknown metal is heated from 30 degrees Celsius to 80 degrees Celsius, requiring specific heat capacity of metal. Requiring 19 kilojoule of heat energy. First, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल. देन इफ द सेम मेटल ब्लॉक इज हीटेड फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी वुड बी नीडेड. सबसे पहले हमें ब्लॉक का मास बताएगा कि 0.5 kg है. चेंज इन टेम्परेचर क्या है 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. और हमें हमारे पास इसके हीट गिवन क्या है 19 किलोग्राम, जिसको हम 19 kg को हम कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ और दैट विल बी 19,000 जोल. ओके, हमने फाइंड क्या करना है, पहले में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल फाइंड करनी है. दूसरे में हमने फाइंड करना है कि कितनी हीट जब सेम मेटल को हीट किया जाता है 80 डिग्री 80 डिग्री सेल्सियस से 125, तो क्या हाउ मच एडिशनल हीट वुड बी नीडेड, कितनी एडिशनल हीट रिक्वायर्ड, वो हीट फाइंड करेंगे. फार्मूला सेम रहेगा. हम इसमें हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पार्ट 1 में फाइंड करनी है, तो उसी फार्मूला से हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी साइड पे कर लिया, Q डिवाइडेड बाय M एंड चेंज इन टेम्परेचर कर लिया, वैल्यूज पुट की, कैलकुलेट की एंड दिस आंसर इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अब सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को यूज करते हुए हम फाउंड करेंगे कि जब हम फिर 80 डिग्री से 125 पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है. सेम फार्मूला में हम उसका मास इंटर करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो अभी फाइंड करके आ रहे हैं उस सेम मेटल का वो इंटर करेंगे और चेंज इन टेम्परेचर. अब 125 माइनस 80 क्या था 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 45 डिग्री सेल्सियस इंटर करेंगे. सेंटीग्रेड अगेन केल्विन हो चुका है, उन चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 17,100 जॉल. 17 हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे 17.1 into 10 power 3. 10 power 3 is equal to kilo, so the answer is 17.1 kilo joule. Question number 4 is
Calculate the change in temperature of 5 liter of water if it absorbs 8.4 megajoule of heat energy. हमने क्या फाउंड करना है, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है. मास हमें गिवन है 5 लीटर विच इज इक्वल टू 5 kg. हीट नीडेड हमें इस बार दे दी गया है विच इज 8.4 मेगा जूल, जिसको हम 8.4 इंटू 10⁻6 जूल कर लेंगे. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज गिवन और हमने फाइंड करना है चेंज इन टेम्परेचर. सेम वही फार्मूला, जस्ट अब चेंज इन टेम्परेचर साइड पे हमने कर लिया, Q डिवाइडेड बाय MC कर लिया, मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बाय पुटिंग द वैल्यूज गिवन we will do the calculation and the answer is 4 into 10⁻⁻2 Kelvin, which is equal to 400 Kelvin or 400 degrees Celsius. Question number 5 is, in a container 100 gram of water at 80 degrees Celsius is mixed with 200 gram of water at 20 degrees Celsius. What will be the final temperature of the mixture? दो 100 ग्राम ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था और दूसरा जो वाटर 200 ग्राम जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, उनको मिक्स किया गया. व्हाट विल बी द फाइनल, दोनों का मिक्स करके फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? अज्यूमिंग नो हीट लॉस टू सराउंडिंग और टू द कंटेनर, और हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हम सेम यूज करेंगे. मास 1 क्या है, 100 ग्राम जिसको हमने 0.1 kg कर लिया. टेम्परेचर 1 क्या है, 80 डिग्री. टेम्परेचर 2, मास 2 क्या है, 200 ग्राम जिसको हमने 0.2 kg कर लिया. हम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स निकालेंगे जो हमारे पास जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर था उसके अकॉर्डिंग यूनिट, ताकि हमें कैलकुलेशंस करने में आसानी हो. टेम्परेचर 2 क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन, हमने टेम्परेचर फाइंड करना है कि फाइनल टेम्परेचर क्या है. फार्मूला इज Q लॉस, हीट लॉस एंड हीट गेन. हीट लॉस में क्या होता है कि मास 1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अंडर ब्रैकेट इनिशियल जो T1 था उसमें से कितना टेम्परेचर लॉस हुआ, T1 माइनस T इज इक्वल टू मास 2 उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो टेम्परेचर मतलब फाइनल हुआ था उससे फिर कितना टेम्परेचर 2 तक जाते हुए कितना टेम्परेचर गेन हुए. दूसरा सब्सटेंस है जो 20 डिग्री सेल्सियस वाला था उसने कितना टेम्परेचर गेन किया. बाय पुटिंग वैल्यूज 0.1 मास 1, 4200 वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 80 टेम्परेचर 1 में से कितना टेम्परेचर जो उसमें से कितना टेम्परेचर लॉस हुआ T, और दूसरी साइड पे T मास 2 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी T एंड -20 जो गेन हुआ उस -20 को अचीव करने में. We will do the calculations. I hope you can understand the calculations. हमने दोनों साइड्स पे कैलकुलेशंस की. हमारे पास यहाँ पे हमने T वाली वैल्यूज दोनों साइड पे इकट्ठी की और E को इस साइड पे लेकर दूसरी कैलकुलेशन की साइड पे लाया. We did the simple calculation. The final temperature is 40 degrees Celsius. Question number 6. A 200 gram of unknown solid metal is heated to 110 degrees Celsius and then placed into a calorimeter containing 200 gram of water and 20 degrees Celsius. Calorimeter has a mass of 60 gram and specific heat capacity of calorimeter is 0.9 joule per gram per degree Celsius. The final temperature of the system solid under water and calorimeter is collectively उनका टेम्परेचर क्या है 35 डिग्री सेल्सियस. Assume no heat is lost to the surrounding. Calculate specific heat capacity of solid. हमने सॉलिड का करना है जिसमें हमें हमारे पास सॉलिड का मास क्या 200 ग्राम which is 0.2 kg. उसका सॉलिड का टेम्परेचर हमने फाइंड किया. मास ऑफ वाटर, मास टेम्परेचर ऑफ वाटर, मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज गिवन. और हमारे पास क्या है हमारे पास टेम्परेचर इज गिवन. हमने फाइंड करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज मेंशन्ड बाय C और ऑफ सॉलिड. ठीक है. हीट लॉस बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर. हम इनके ये डेटा पुट करेंगे उसी Q से मेंशन के Q वाला सेम जो पिछला फार्मूला था उसी के. दिस इज हाउ वी विल मॉडिफाई our formula and do the calculations. I hope you can get the calculations. So that's all from today. That's all from the unit number 10 of physics class 10. We covered the long questions and important numericals today, and in previous video we have done MCQs, constructive response questions and short questions. If you find this helpful, give the video a thumbs up and share it with your classmates.
Don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss an update. Thanks for watching, and I will see you in next video. Allah Hafiz.